Aspirational rural India comes to life inside the brightly painted classroom of the government primary school in Varanasi district's Kakraiya village. Here, alongside a dusty blackboard, students learn from a large screen guided by their teacher. This tiny UP village, once known mainly for its wrestlers and akharas, has leaped into modernity since being adopted by Prime Minister Narendra Modi. But outside, a different reality unfolds. अब इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, आपको एक बार और कहा तक नहीं कि आप यहाँ पे थोड़ा मशीन नहीं चल रहा है, आपको कंप्लेन भी दिया था। आप कैसे कर रहे हैं? 7 दिन पहले चाबी मिला है आपको, पहले ये बताइए। नहीं, आप देखिए, झूठ मत बोलिए, पहले ये झूठ मत बोलिए। PM Modi adopted Kakraiya in 2017-18 under the Sansad Adarsh Gram Yojana, which tasked parliamentarians to develop Adarsh Gram or ideal villages in their constituencies. In 2014, when Prime Minister Narendra Modi decided to adopt Jaipur village in his Lok Sabha constituency of Varanasi as his adopted village under the Sansad Adarsh Gram Yojana, he said that it was not he who was adopting the village, it was the villagers who were adopting him. 10 years later, there are 6 more villages in this list of villages that have been adopted by Prime Minister Narendra Modi in Varanasi. While the Yojana's implementation has seen mixed results, the question remains, have villages under Modi's direct oversight fared better than others? To get a clearer picture, the print visited 4 of these 7 villages earlier this month: Jaipur, Kakraiya, Pure Bariyar and Pure Gaon. All have received a physical makeover with beautifully painted school buildings, panchayat bhavans, Anganwadi centers and new concrete and interlocking roads. There are also billboards crediting PM Modi wherever Yojana projects have been completed. With this CSR funding coming in, these 7 blue-eyed boys of PM Modi boast of an image like no other village. They boast of perfection. They talk about how these villages are clean, what sort of facilities these villages have. They boast of development like no other time and like under no other government. The Pradhan of this village is Indu Devi ji, but we have with us former Pradhan of this village, Pure Bariyarpur, and currently Pradhan ji's representative, Arvind Singh Patel ji. आप इस गांव में कितने सालों से रह रहे हैं? आप यहीं पे बड़े हैं? हम तो यहाँ बचपन से ही हैं, हमारी पैदाइश ही यहाँ पर है। अच्छा, हम तो 50 साल से यहाँ पर हैं। तो 50 साल में और पिछले कुछ सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस गांव को गोद लिया, तब में और अब में क्या फ़र्क आपको दिखा है? पहले होता था कि गांव में जो है कि बजट बहुत कम आते थे, तो उससे जो है कि सारे विकास कार्य जो है कि नहीं हो पाते थे। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस गांव को गोद लिया है CSR फंड से, इतने जो है कि इतने पैसे आए ग्राम सभा में, ग्राम सभा की कोई भी जो है कि अब विकास कार्य जो है कि बचा नहीं है। यहाँ की समस्त आंतरिक गलियों में जो है कि जल निकासी, उसके बाद इंटरलॉकिंग, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, मिनी स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय की बाउंड्री वाल और आवास, हर घर जल नल योजना के अंतर्गत कायाकल्प और बेसिक प्राइमरी पाठशाला के टेबल, मेज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड, आंगनबाड़ी का जो है कि निर्माण, तमाम ऐसे यात्री शेड, पशुशाला जो है कि गौशाला जो हमारा था उसकी बाउंड्री वाल नहीं थी। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है, उस जो है कि गौशाला की बड़ी बाउंड्री वाल, हर एक चीज़ जो है कि एकदम पूर्ण रूप से जो है कि यह गांव संतृप्त हो गया है। अब इस गांव में विकास के लिए छोटी मोटी कुछ जो है कि कार्य बचे हैं, वो भी जो है कि अभी 1-1.5 करोड़ का जो है कि बजट पुनः जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा CSR से आ गया है, उसका जो है कि टेंडर भी हो चुका है, चुनाव बाद हो जाएगा। इस गांव में विकास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। Less than a decade ago, Jaipur, Modi's first adopted village, lacked basic facilities such as an ATM, bank branch, post office and even a bus stop. A 2015 baseline survey identified these shortcomings and charted a course for improvement in the village. Most goals have been met. Jaipur, home to around 3,200 people, now boasts of a renovated panchayat office, an open gym, a public washroom, 2 banks and an ATM.
On my left is a solar power plant. On my right is Amrit Sarovar. This was a pond. It was an innovation that was supposed to come up in almost every Gram Panchayat. This was set up very recently. And with me is Jaipur's प्रधान मिस्टर राजकुमार यादव. धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए. सर आप कब यहाँ के प्रधान बने? यही 2021 में. 2021 में. सर ये प्रधान बनने के बाद से अब ऑफ कोर्स पीएम मोदी ने इस गांव को सबसे पहले गोद लिया था, 2014 में गोद लिया था. लेकिन चलिए आपके प्रधान बनने के बाद आपने किस तरह का बदलाव देखा है? उससे पहले भी आप इसी गांव से हैं ना? तो पिछले 10 सालों में आपने किस तरह का बदलाव देखा है, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? अच्छा, पहले से भी बदलाव है, अभी भी बदलाव हो रहा है. बदलाव हम लोग कर रहे हैं, गांव का विकास अच्छा हो रहा है. जैसे अमृत सरोवर हुआ, लाइट हुआ और मनरेगा से काम हुआ, आवास हुई गांव में बना, बहुत सा स्कूल का काया क्लब हुआ, पंचायत भवन का पूरा काया क्लब हुआ, बढ़िया बना. मतलब जितनी भी गांव में कामें हैं बन हो रहे हैं, बढ़िया से हो रहा है सब. The change isn't just physical, it's social too. The school in Pure Bariyar, for instance, has classrooms named after women icons such as Rani Lakshmibai and Kalpana Chawla. A trip around these villages shows Izzat Ghars or toilets all marked with the name of the women of the houses. Since they were adopted, Jaipur has seen 327 toilets built, Nagpur 507, Parampur 639 and Pure Bariyar 233 individual toilets built since they were adopted. हमके खुशी होता है कि हमारे घर पर शौचालय है, हमको बाहर नहीं जाने पड़ते, अपने घर पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. In Kakraiya, women from self-help groups show off saris made on their village power looms. मैं समूह सखी हूँ. ब्लॉक से सभी काम मतलब यहाँ गांव में जितना भी आता है सब मैं लाती हूँ और जितना योजना होता है, जितना भी सब लाभ होता है सब गांव वालों को बताती हूँ और उसके लिए मतलब सभी महिलाओं को जागरूक करती हूँ कि मतलब सक्षम करती हूँ कि मतलब सब लोग अपना काम करें अच्छे से और अच्छे से मिलजुल के रहे. समूह इसीलिए बनाया गया है, इसलिए सभी को जागरूक करना ज़रूरी है. आपने कब से ज्वाइन किया? 2020 से. 20 से ज्वाइन किया. तो जागरूक आप करती है तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ मैम वो सब करते हैं, सब अच्छे से पेश आते हैं भी है और अच्छा भी करते हैं. मतलब सबका देखकर भी रवैया अच्छा लगता है कि मतलब सब हमारे प्रति इतना अच्छा से कर रहे हैं, इसलिए सब अच्छा लगता है हमको. But not everything is idyllic. Despite claiming amenities unlike any other in the country, villagers are vocal about issues that haven't been addressed and which significantly affect their quality of life. Back in Kakraiya, villagers are tired of erratic water supply and irate about the unoperational tank looming overhead. अभी तक शायद 1 महीना भी ढंग से नहीं चला ये. मैं ये लिखित दे रहा हूँ, आप मतलब किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, 1 महीना कंटिन्यू नहीं चला है और इसका ना हर जगह लीकेज है. मैं प्रधान जी यही सामने है, इनसे भी कहा कि इसका मतलब थोड़ा लीकेज जो है इसको सही करा दीजिए. वो अभी तक कराए नहीं, लगभग 4 साल हो गया है. 4 साल. अभी ऑन करेंगे मशीन, आपको जगह जगह पर छेद मिलेगा कि नहीं? ये बोल रहे हैं कि ये टंकी नहीं चली है, इसमें कुछ दिक्कत है टंकी में? ये देखिए टंकी जो है ये बनाए थे जो भी नगर निगम से आज जिससे भी बनाया है, ये लोग हैंड ओवर हमको बहुत बाद में किए हैं. अच्छा. और ये अभी तक वही चला रहे थे. इसको मैं अभी 2-3 दिन हुआ मैं लिया अपने हाथ में. अच्छा जी. तो इसको उससे पहले आपने अपने हाथ में हैंडओवर नहीं हुआ था? जी नहीं, उसके पहले वो करा रहे थे, अपना जल निगम के जो लोग अधिकारी थे सब चला रहे थे. वो सही से चल नहीं रहा था या फिर कनेक्शन कहीं कहीं नहीं हुआ है, ये सब मैं बात किया था, सीडीओ साहब ने बात किया था, उसको सही दुरुस्त कराया गया था. और जहाँ पानी की जो फटी हुई थी वो सब दुरुस्त भी कराया गया था. 7 दिन हुआ चाबी मिले. ठीक, अब इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, आपको एक बार और कहा तक नहीं कि आप यहाँ पे थोड़ा मशीन नहीं चल रहा है, आपको कंप्लेंट भी दिया था. आप कैसे कर रहे हैं? 7 दिन पहले चाबी मिला है आपको, पहले ये बताइए. नहीं, आप देखिए, झूठ मत बोलिए, पहले ये झूठ मत बोलिए, ठीक है? आप यहीं पर आए थे. और In Puregaon too, water is a problem. Resident Chinta Devi claimed she was not aware of PM Modi having adopted her village. आपके घरों में पानी आता है? ना मैंने घर में पानी आवत रहले पर तब से यहर बंद हो गल तो यहर पानी अइबे नहीं करन. अच्छा, तो इधर पूरा एक कभी नहीं आता? नहीं, यहर नहीं आता. तो आप कैसे फिर घर का काम करते हो? हम बोर चापाकल है वही से हमने चलाते हैं, ऐसे करी ले अपन काम. Water was not the only worry in Kakraiya, food was too. Several villagers claimed they hadn't received rations for 2 months due to malpractices in the supply chain. Before the prince's visit on 13th April,
Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, poor families receive 5 kg of food grains each month. यहाँ का राशन क्यों नहीं आया हमारे गांव में? 2 गांव का राशन नहीं, 2 महीने का हमारा हम नहीं लोग मिला है। दरखास्त देने वाले हैं, किसी का नहीं आया, अंगूठा लगवा लिए। सब सवा ये प्रधान है, इनसे बोले तो कहे ये सेक्रेटरी है, जानते जाकर उससे बात ये करो, प्रधान और कोटेदार से। सेक्रेटरी दोनों मिल करके हमने पूछा कि भाई राशन क्यों है, क्या हमारे बीच का वो काम नहीं है। ये प्रधान बोला वहाँ पर कि हमारे बीच का काम नहीं है, 2 बार का हमारा नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला है, 2 हमको बार नहीं का। मिला। आप इसी गांव हाँ, का हाँ इसी गाँव के हैं। बताइए क्या अरे इसमें समस्या हम है? 1.5 हमें अगर बता पाएं कि जो इनको राशन नहीं मिला उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उस पर हम लोग लिखित दे दिए हैं, किसको दिया है? वीडियो साहब को दे दिए हैं। वीडियो साहब बोले हैं कि हम आगे तक इसको कार्रवाई कर देंगे। Several villagers gathered around demanding answers to their problems. हमें बताइए कि क्या क्या कार्रवाई हुई है। मेन जो मुझे समझ में आ रहा है कि इन सभी गाँव वासियों का दिक्कत एक तो पानी है और एक राशन है, बहुत ही बेसिक दिक्कत है। देखिए, राशन के लिए दिक्कत है, उसके लिए मैं जान रहा हूँ दिक्कत है, लेकिन पानी की समस्या किसी को नहीं है। घर घर पानी जा रहा है। सुनिए मैडम देखा वहाँ पर ठकुराने का मतलब पानी है तो गांव में पानी वहाँ इनके घरे तक पहुँच जाता है। ठीक वहाँ पर 3 इंची नहीं, पहले सुना तोरे यहाँ 3 इंची का पाइप आके यहाँ आवा के हमने कहाँ से लिया, मशीन पर से पानी हमने लिया। मान लो यहाँ अगर कोई आवाला तो कला करी यहाँ पानी टंकी है, फिर भी तो लोग के पानी नहीं है, हमने वो प्राइवेट मशीन है उनसे मांग के हमने पानी लिया। As for the other villages, both Kakraya and Puregaon also did not have street lights. There is one solar street light in Kakraya with a small board crediting PM Modi for it. The board says that the light was put up in 2018-19 for an amount of 21,700. However, Vikas, a resident of the village, told the Print that the battery that powers the solar street light was stolen at some point and that the light hasn't been working since. Residents shared their frustration with the lack of lighting, citing safety concerns when out and about at night. थोड़ा बल्ब लगक चाहिए। बल्ब कहाँ पे? यहीं पर, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होला। तो कहीं पे भी बल्ब लगा है? नहीं रास्ते पे नहीं, एक इधर कहीं भी वहाँ से लेके यहाँ तक एकदम अंधेरा रहला है। वहाँ बसवार बगीचा है ना, उधर भी कहीं भी। यहाँ पर तो हम लोग ये गांव के भी प्रधान से वो गांव के भी प्रधान से कहल गल, लेकिन कोई लगवैले नहीं। In Pure Bariyar, several residents made it a point to show off their homes or proudly displayed certificates showing their allocation of Awas or houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin scheme. Under this scheme, 15 houses were completed in Jaipur in 2022-23, 3 in 2021-22 and another 9 in 2020-21. Similarly, several Awas have been built in other villages too. Officials in Varanasi on the condition of anonymity told the Print that through CSR, a total of 192 additional houses have been sanctioned for all the 7 villages. However, on-ground implementation presents a different picture. In Kakraya, the wall outside an Awas says it was made in 2020-21, but it was still just a 4 walls, staircase and a washroom without an entry gate and bricks and cement bags left behind inside. In Puregaon, Anil Kumar Patel, who relies on a manual handicapped tricycle to get around, claims he received a house a year ago. However, he hasn't been able to move in because he lacks the funds to make it habitable. According to Patel, he hasn't received his Manreg's payment for the 95 days of labor he completed after the house was allocated to him. अनिल कुमार पटेल जी, क्या आपको आवास मिला था? जी मिला था। कब मिला था आवास? ये साल भर हो गया साहब। अच्छा, तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं आवास? अभी शिफ्ट कहाँ हुए, अभी तो वो मजदूरी को जोर है, आ जाए तो मैं उसको एकदम घुराई उराई करके फर्स्ट क्लास अपना रहना चालू कर दूँ। अच्छा, तो ये जो आवास के साथ 90 दिन की मजदूरी मिलती है वो की है आपने? किसने की वो? जी हमने की, हमारी बीवी ने की। अच्छा, हाँ। तो अब उसका क्या दिक्कत है उसके मजदूरी का? मजदूरी आया ही नहीं, जो कि मैं उस छत को घुराई कर दूँ, घुराई उराई करके अपना रहने लगूँ, ये आया ही नहीं है। कहते हैं वीडियो साहब, सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि पैसा आया है, मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखो कुछ नहीं आया है, इसमें कह रहे हैं नहीं आया है। ये किसकी? आपकी? ये मेरी है। हाँ, और ये मेरी वाइफ की है, और ये मेरी वाइफ की है। ये कुछ पैसा नहीं आया है। हाँ, और ये का खोल के दिखाइए। ये वाइफ का है। सब कहीं कुछ नहीं आया है, कह रहे हैं कि आया है पैसा।
आपने आखिरी बार कब ये चेक किया था? अभी कल ही मैंने चेक किया, आज भी चेक किया। The Sansad Adarsh Gram Yojana was probably PM Modi's one of his most ambitious projects. It was launched in 2014 on the birth anniversary of Jaiprakash Narayan, and the idea was to encourage members of parliament to adopt one village, one gram panchayat, and make it an ideal village by 2016 and 2 more by 2019 and so on. The website of the Yojana says that this is inspired by Mahatma Gandhi and his ideals of Gram Swaraj, and we are here trying to see that in PM Modi's adopted villages. So while these villages appear as poster boys of development, especially within rural India, looking further inside these villages revealed cracks and revealed people who may still be struggling to demand accountability for their basic necessities like ration, water and street lights. This is Apurva Mandhani reporting for The Print along with our national photo editor Praveen Jain reporting from the ground.